آپ کو پتہ ہے وہ گلی ہے بڑی لمبی سی، بھاٹی سے شروع ہونا ہے یا لوہاری سے شروع ہونا ہے. تو جب ہم پڑھتے تھے نا تو تب اس کی جوانی تھی حضرت، وہ ماشکی بولتے ہیں شاید اس کو، وہ مشک میں نا وہ صبح دکانیں بازار کھلنے سے پہلے نا وہ گلی میں پانی چھڑکا کرتا تھا. میں اس دن ایک لاہور پروگرام تھا تو میں نے کہا چلو یار چلیے پھر ہونا گلی میں. تو ہم صبح صبح فجر کی نماز داتا ہوں پڑھی تو وہ پھر پانی جو ہے نا وہ چھڑکاؤ کر رہا تھا، لیکن اب بوڑھا ہو گیا تھا. مجھے بڑا رونا ہے. میں نے کہا یار اس نے کوئی بزنس کیوں نہیں شروع کر دیا، کیونکہ خود نہیں ہوتا ادھر سے ہی ہوتا ہے جو ہوتا ہے. شکر حضرت جی، شکر اللہ کا ادا کیا. حقیقت کہہ رہا ہوں، جے چاہیں تے راہ جاندے نہیں تخت عطا راہ جاندے نو تخت عطا مینوں ککھ نہیں لگا. جے چاہیں تے راہ جاندے نو تخت عطا، جے چاہیں تے شام کو در در خیر بنائے. اس کی بے نیازی ہے حضرت، شکر ادا. یہ جو ہم امیر لوگ ہیں جن کو اللہ نے دیا ہے وہ چلے ہو. میں تو احباب سے کہا کرتا ہوں مسلح نہیں، ہم تو کوئلوں پہ رب کو سجدہ کریں تو ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے. ہمیں کیا لگ گیا ہمیں گاڑیاں دے دی، ہمیں کیا لگ گیا ہمیں اس نے بنگلے دے دی ہیں، ہمیں کیا لگ گیا اتنی اتنی قیمتی گھڑیاں دے دی، ہمیں کیا لگ گیا اتنے اتنے مہنگے ہم نے کوٹ پہنے ہوئے ہیں. کیا کر لیا ہم نے؟ وہ جو باہر نالے بیچ رہا ہے اس نے اللہ کا کیا بگاڑا تھا کہ وہ نالے بیچ رہا ہے، میں گاڑی پہ بیٹھا ہوں. بس بے نیازی ہیں اس کی. جے چاہیں تے راہ جاندے نو جے چاہیں تے راہ جاندے نو یہ چاہیں شاہ کو لوٹا. اس لیے حضرت جی ہم تو فرض نہیں پڑھتے، ہمیں تو نفل نہیں چھوڑنا چاہیے. شکریہ کے طور پہ بادشاہ تیریاں بے نیاز. غریب دے بچے نے ایک ویلے کھان دی روٹی نہیں ملی، اسے ساڈیاں بچیاں نے کنے کنے ہزار دے فراق پائے دے. ایک ٹائم دی روٹی نہیں ماڑے نو بھی اثر ساڈیاں بچیاں نے کنے کنے مہنگے فراق پائے. ہو سکتا ہے شکر اس کا. اس لیے شکریہ ہر یا اللہ کا شکر. بڑا حضرت جی اس طرح ہی ہوتا ہے، بس اس طرح پتہ بھی نہیں لگتا. میں تو سیالکوٹ میں بیٹھا نا، انڈسٹریل ایریا ہے. میں نے زیرو کو ہیرو اور ہیرو کو زیرو ہوتے دیکھا ہے اپنی زندگی میں، صرف 36-37 سال میں. اور یہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کی تفسیر میں شیخ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں عید کا دن تھا اور بالکل نو بیاتا جوڑا تھا، نئی نئی شادی ہوئی تھی. تو وہ کیا تھے، وہ عید کی نماز پڑھ کے نا بیٹھے شیرینی میٹھا کھا رہے تھے. تو دروازے پہ دستک دی، کسی نے صدا لگائی، ہے کو اللہ کے نام پہ غریب کو کھانا کھلانا. وہ خاوند کو خوف خدا والا تھا، اس نے بیوی کو کہا جاؤ جو بنایا اس کو بھی کچھ دو. وہ بیوی گئی، اس نے جا کے نا وہ جب دروازہ کھولا تو کیا ہوا، بس ایک چیخ ہی بلند ہوئی اور بیوی زمین پہ گر گئی. وہ خاوند اٹھا، آیا بیوی بے ہوش ہو چکی تو اٹھا کے اندر لایا، پانی کا چھڑکاؤ کیا، بیوی ہوش میں. اس نے کہا تو فقیر کو کچھ دینے گئی تھی تو خود ہی گر گئی. اس نے کیا بتاؤں، آپ کو پتہ ہے آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے میں کسی اور کے نکاح میں تھی. ہاں مجھے. اس نے کہا بہر یہ جو بھکاری آیا تھا یہ میرا پہلا خاوند ہے. یہ چاہیں تھے راہ جاندے تخت تھا، یہ میرا پہلا خاوند ہے. وہ کہتا پھر ہوا کیا، وہ کہتی اسی طرح ایک عید کا دن تھا، ہم بیٹھے کچھ کھا رہے تھے تو باہر صدا لگی، ہے کوئی اللہ کے نام پہ دینے والا. اور حقیقت ہے حضرت ہمارا تو 100 کا نوٹ دیتے ہوئے بھی جان جاتی ہے. وہ قربان جاؤں وہی تھے جنہوں نے سارے کے سارے کنبے دے دیے. سیکھاں اتے مکھن پکاڑا ڈاڈا اوکھا کر، بچے دے کے دین بچانا سخی حسین کا. میں تو بڑے در سے ہوئے، ہم تو اتنے بے وفا ہیں، ہم تو یہ نہیں دے سکے. ہم سے تو یہ 4 بال نہیں رکھے جاتے، 1000 باتیں آتی ہیں آگے سے. ہم نے کیا دینا ہے؟ ہم سے تو یہ بھی نہیں دیے. کیا یہ ٹوپی رکھنے سے کیا بندہ کو پاگل لگتا ہے؟ ہم تو یہ بھی نہیں کر سکے. ہم نے کیا دینا ہے؟ وہ تھے تیرے عشق میں اے یار، ہم نے کیا کیا نہ کیا. صبر ایوب کیا گریا ہے. وہ کہتی ہے صدا لگی
तो मुझे आपने तो मुझे भेजा ना, लेकिन वो जो पहला खामिन था वो खुद गया और बाहर जाके ना उसने फ़कीर को बड़ी गालियाँ दी, बड़ा लानत कभी ना करना, बल्कि डर जाया करो देख के, डर जाया करो। वो रोता वो चला गया, बस फिर हज़रत जी ज़वाल शुरू। और हज़रत हमारी आदत है, आगे कमज़ोर हम चढ़ दौड़ते हैं। हज़रत जी किसी को माड़ा वेख के ना चढ़ाई कर दीजिए, माड़े को बहुता डरी। हम ताकत वाले से डरते हैं, माड़े से नहीं डरते। मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, ताकत वाले से डरना, लेकिन कमज़ोर से उससे भी ज़्यादा डरना। अर्ज़ की गई, हज़रत कमज़ोर से क्यों डरें, वो क्या कर लेगा? आपने फरमाया वो तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसका रब सारा कुछ ही कर देगा। ध्यान रखना, ये मेरे माशरे का मिजाज बन गया हज़रत। यहाँ कमज़ोर को देख के हम चढ़ दौड़ते हैं हज़रत, लेकिन एवं ही ना, बस एवं ही होता है। एक दिल से एक आ उठती है और सीधी जाके अर्शे इलाही को थाम देती है, एवं ही आ उठती है। गरीब तो पहले बड़ा पिसा होता है, उस बेचारे की क्या जिंदगी है। लेकिन ये खुदा भी बड़ा बेनियाज है, आगे जाके उनकी अय्याशियां हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत के फ़कीर मेरी उम्मत के अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। भाई मुझसे तो उसने घड़ी का हिसाब मांग लिया, मैं तो ये भी नहीं दे सकता था। मैंने कहा से हिसाब देना, उसने अगर कोर्ट का हिसाब मांग लिया तो मैंने कहा से देना है? उसने अगर इतना ही पूछ लिया, बता भाई तेरी बच्चियां भी 6-6 हज़ार के फराक पहना करती थी, बता भाई, मैंने क्या जवाब देना है उसको? गरीब ने किस चीज का जवाब देना है, उसके पास क्या जवाब देने का? फरमाया, मेरी उम्मत के फ़कीर मेरी उम्मत से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे, अल्लाह लेवल करेंगे। हाँ, इसलिए अगर चाहते हो ना कि वहां आसानियां हो, बांटा करो। लेकिन बांटना इस तरह नहीं, अब ये रमजान आने लगा है, अब क्या होगा, गरीबों की गरीबी का तमाशा लगेगा। लिख दिया जाएगा जी हज़रत साहब ने फलां दिन लंगर तकसीम करना है, गर्मी होगी, रोज़ा होगा, गरीब आके सारा दिन धूप में खड़े रहेंगे। ठीक है जी, हज़रत साहब नहीं आ रहे, नहीं वो सैरी करके सोए होंगे। हज़रत साहब जनाब 3-4 बजे उठेंगे और आकर जनाब राशन तकसीम करेंगे। लेकिन कुर्बान जाऊँ लिखा है, जब हज़रत सैयद इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ, वो हज़रत का कुर्ता मुबारक गुस्ल देने के लिए उतारा गया, तो क्या देखा, हज़रत की कमर पे निशान है बकाया। आपस में बातें शुरू हुई, ये तो शहज़ादी हैं, निशान किस चीज़ के? जो हज़रत के खादिम थे, आपने फरमाया अपनी ज़ुबानें बंद रखो, गुलाम के लिए, इमाम के लिए दिल में कोई मैल ना लाना। कहा फिर तू ही बता निशान किस चीज़ के? आपने फरमाया, अगर बात इमाम की शान और शौकत की ना होती तो इमाम ने वादा लिया था कभी राज ना खोलना मेरा। सुनो, ये निशान उन बोरियों के हैं जो इमाम रात के अंधेरे में अपने कंधे पे उठा के यतीमों के घरों में छोड़ने जाया करते हैं। चलो शुक्रिया में दिया करो, खुदा का शुक्र है अल्लाह ने मेरे बच्चों के सर पे मेरा साया सलामत रखा हुआ है। वो कभी जाके पूछ यतीम को यतीमी होती क्या है यार? यतीम किसको जाके के, मुझे आज मेरा भी पार्क जाने को दिल कर रहा है, किसको कहे जाके? वो यतीम किसको जाके कहे कि मुझे आज मैंने भी पिज़्ज़ा खाना है? ये यतीम किसे जाके कहे जनाब आज मैंने भी फलां काम करना है? हज़रत जी शुक्रिया के तौर पे बांटा करो, तेरा शुक्र है। यतीम से पूछो यतीमी होती क्या है, शुक्रिया के तौर पे बांटा करो, शुक्रिया के तौर पे। देखो अपने इर्द गिर्द केड़ा केड़ा माड़ा है, केड़ा केड़ा यतीम है, केड़ा केड़ा गरीब है। अराई तल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदूल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन है। कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम वला तहाद्दून अला तआमिल मिस्कीन। हज़रत जी वंड लो आज, खुदा दी कसम कहने वंड लो आज, ए नाल नहीं जे जाना है बैंक च पे रह जाने, अज इनू वंड लो अपनी, अज इनू वंड लो हज़रत। फिर देखो हज़रत जी, फिर देखो होता क्या है हज़रत, फिर देखो सखी तो अल्लाह का दोस्त है। मैं तो क्योंकि मैं सियालकोट में जिस जगह खतीब हूँ ना, मेरे पीछे फैक्ट्री एरिया है सारा, अमीर कबीर अरबों खरबों वाले लोग मेरे जुम्मे में मेरे सामने। मैं उनसे कहा करता हूँ, मैं यार असी तो पता नहीं की करना, फिर यारी लगनी, पता नहीं लगनी भी नहीं लगनी है, लेकिन हुजूर फरमा रहे हैं सखी अल्लाह का दोस्त है। तो तुम्हें अल्लाह ने पैसा दिया, लगाओ यारी यार, खानी तो फिर वो 2 रोटियां ही है ना। आज 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 कर लो हज़रत जी, आज कर लो। वो कहती है कि ये गया और जाके ना उसको बड़ी बड़ी लानता की, और चोटाएं फिटियाएं, ये है वो है, इस तरह है उस तरह है, ये उसको कह के ना आ गया।
बस फिर इसका जवाल शुरू हुआ, कुछ नहीं, कंगला हो गया मैंने इसे अलहदगी तैयार कर ली, उसने मुझे तलाक दे दी, मैं आपके निकाह में आ गया। अब शेख लिखते हैं तफसीर में कि वो जो दूसरा खामिंद है ना, जिसके निकाह में वो औरत थी, वो कहता अब इससे भी अजीब बात ना सुना। उसने कहा वो क्या? उसने कहा वो जो भिखारी मांगने आया था ना, जिसको तेरे पहले खामिंद ने गालियाँ दे के निकाला था, उसने कहा वो मैं हूँ। जे चाहे तेरा जाने तख्त अता फरमाए, जे चाहे ते शाह गुलूं दर दर है। शुक्रिया के तौर पर फर्ज तो है ही है ना, शुक्रिया के तौर पर उसका बड़ा करना है। बड़े लफज ना बोलो, माड़ियां नाल प्यार करो, माड़ियां नाल मोहब्बत करो, खुदा कोई कसूर नहीं माड़ा है। मैं बच्चों को बताता हूँ, मेरा ना एक UMT लेक्चर था, हमारे सियालकोट में यूनिवर्सिटी है, तो UMT से बाहर निकल के ना सड़क क्रॉस करके, जिस तरह दूसरी समत, ये सड़क ज़रा छोटी है, सड़क काफ़ी बड़ी सड़क है, सामने ना स्टोर है, मैंने उससे कुछ लेना था। थोड़ा सा आगे आके ना वो, क्योंकि फैक्ट्री एरिया है, और फैक्ट्री एरिया से जब बाहर आते हैं ना तो मेन रोड वही, आगे फ्रूटों की रेडी है, इसलिए क्योंकि फैक्ट्री एरिया है, ज़ाहिर है वहाँ फैक्ट्री के मालकान निकलते हैं और वो बड़ा अच्छा जो दाम देते हैं। ज़ाहिर है एक बंदा जो लैंड क्रूज़र से उतर रहा है, उसने बहस तो नहीं ना करनी है, उसने तो यही कहना भाई ये 5 किलो सेव कर दे, ये कर दे, ये इसलिए रेडी हैं उधर ना काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने भी स्टोर से लिया और मैं भी ना अपनी मौज में चलता जा रहा हूँ। तो मेरे आगे ना एक छोटे कद की पस्त का दौर, एक इधर बच्चा एक इधर बच्चा। तो इससे पहले उनकी आपस में क्या गुफ्तगू हुई मुझे नहीं पता कोई, लेकिन जब मैं उनके बिल्कुल करीब गया तो ये आवाज़ मेरे कान में। आपको पता है जरा जी, सर्दियाँ सीज़न है सेब का, गर्मियों में सेब अच्छा नहीं होता, सर्दियाँ सीज़न है, काला कुल्लू लाल बेहतरीन सेब। और आपको पता है बच्चों की आदत भी है, बच्चे जो देखते हैं वो मांगते भी हैं। मैं जब उनके करीब आया ना तो ये आवाज़ मेरे कान में, बच्चे ने ना वो माँ का बाजू खींचा और सेब की रेडी की तरफ इशारा करके ना अपनी माँ को कहता है मैं कदी तो सेब लै दे, उन्हें कदी सेब ही नहीं खाता है। हकीकत मैं को लतीफ़ा नहीं सुना भाई, जिस बंदे की 16,000 तनख्वाह है, उसने 300 रुपए किलो सेब कहाँ से बच्चे को लेके दे दे। हम तो अल्लाह का शुक्र ही नहीं अदा कर सकते, हम कितने कितने हज़ार के पिज़्ज़े खाते हैं बैठ के वहाँ, मेरे पैरों के नीचे से जमीन। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कभी सेब ही नहीं खाया। माँ ने ना बड़ी हसरत से सेब को देखा, पता नहीं क्या क्या हो गया उसके अंदर गुजर गया होगा। वो बच्चे को प्यार करके कहती है पुत्रा रात दी आंडी पक जे तो बड़ी गल है, तेन सेब कितों लैके दे। हम नहीं अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते, हम नहीं अल्लाह का शुक्र। जे चाहे तेरा जाने तख्त अता फरमाए, जे चाहे ते शाह गुलू दर दर खैर। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, खूब अपने अल्लाह को याद करो, ठीक है जी, खूब अपने अल्लाह को याद करो, खूब अपने अल्लाह को याद करो। आपको क्या पता हज़रत ये आंसू क्या कदर व कीमत रखते हैं। वो मियां मोहम्मद बख्श साहब ने कहा था ना, आप फरमाते हैं रेत वजूद तेरे विच सोना एवं ही नजर ना आवे, अंजुआं दा पानी दे मोहम्मद रेत मिट्टी रुड़ जावे। है तुम्हें क्या पता हज़रत इन आंसुओं में क्या ताकत है। मेरा इतना ही होता है, अखां भिजियां समझो कम हो बस। हज़रत वो अपनी भी कोताहियाँ मेरे सामने हैं और उसकी अताएँ भी मेरे सामने हैं, कितना नवाज। एक गुनाह जे मापियो देखे देवे देश निकाल, लख गुनाह पिया मेरा मौला देखे पर्दे पावड़ा। क्या नहीं किया, क्या नहीं किया। और भाई हम एक बार किसी को बुलाएं ना आए तो चलो हम इग्नोर कर देंगे, दूसरी बार ना बुलाएं को बड़ा कलेजे वाला होगा जो इग्नोर कर देगा, तीसरी बार कलेजे वाला भी कहेगा चल लो। लेकिन देख लो हज़रत जी 37 साल हो गए मुझे दिन में 5 बार बुला रहा है, मैं नहीं जाता। कोई छोटी बात है हज़रत, 37 साल 5 बार दिन में। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह।
हाल हमारा ये है हजरत जी, थाने से सिर्फ एक स्पाटा में आके ये कह रहे ना भाई 12:30 बजे तूने थाने में पहुंचना, तुझे SHO साहब ने बुलाया। मैं 12:30 नहीं, मैं 12 बजे थाने में जाके बैठ जाऊंगा। लेकिन क्या है, दिन में 5 बार सदाएं आती हैं, हय्या अला सलाह। फिर बंदा है ना फिर थोड़ी सी लालच भी दे दी था, हय्या अलल फलाह। लेकिन कितना बेवफा हूं मैं, नहीं जाता है। लेकिन क्या है, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं। अगर हम बावफा होते तो क्या होते हैं? वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह ना पढ़ने की वजह से खाना उठा लिया ना, वही क्या ही है, इब्राहिम ने क्या किया? या अल्लाह तेरा ना ही नहीं ले, फरमाया मुझे भी तो देखना, मुझे 70 साल हो गए हैं, खिला भी रहा हूँ पिला भी रहा हूँ। इसलिए कर लो, ठीक है जी। और कुर्बान जाऊँ हजरत जी,